if you think that becoming the AIR 1 of IPMAT exam or even falling in the bracket of AIR 1 to AIR 10 is just the game of being very good with English or knowing everything in maths, then I might need to change your mind. So let's start this video, because today I am going to tell you exactly what the psychological mind game of a topper is. Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach, and let's dive into this because this is very important. Look at what they have to say first. I think biology is my passion. I got, want to say, like fatigue with mathematics. Need to JEE and then JEE to IPMAT. Marks help me with it. If we give more marks, we will start. I will have a checklist more than schedule. थैंक यू बिजनेस ही करना है। तुम्हारे अलावा वहाँ कोई किसी को IPMAT पता भी था कि क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर दिया, उससे अच्छे बच्चे के साथ कॉम्पिट कर रहा हूँ। मैंने 50 के आसपास मार्क्स दिए थे। तो आपको लॉजिक बिल्ड करना ही पड़ेगा। बोर्ड थे, प्री बोर्ड थे, स्कूल में पेपर चलते थे। So here the pointer one is that you have to reframe your failures as feedback. Now how are you going to do it? सीधी बात है एंड बहुत इजी बात है कि जब भी आप किसी भी मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आप क्या करते हो, आपका मेन थॉट प्रोसेस ये होता है कि ठीक है गलतियां देख ली एंड अलग करके रख दिया। लेकिन नहीं, टॉपर्स का माइंडसेट इसमें बहुत डिफरेंट होता है एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, आई हैव टॉक्ड to so many people who have done so well in IBMAT exam, and this is going to help you as well. Compartmentalizing their mistakes, कि किस वजह से उनने वो मिस्टेक की है. Is it a knowledge gap? Is it a time management gap? Or is it just an emotional or mental gap? Let me explain. For example, you are stuck in a question in your IPMAT exam during giving that mock or during giving that exam itself. At that point of time, what was the problem? Why did you mark the answer incorrectly? Why were you not able to write anything? Why did you get the negative marking? What did you do wrong? Now here, mostly what people think is it's all about formula and it's all about vocabulary, but that's not true. एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपने कोई मिस्टेक की है तो वो क्यों हुई है। क्या आप में कोई नॉलेज की कमी थी? क्या आपने अपनी जो ब्रेन में सेट नॉलेज है उसको यूज नहीं किया? क्या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था? उस टाइम के टेंशन में, एंजाइटी में आपने कोई गलती कर दी? या आप एक मेंटल या इमोशनल फ्रेम में चले गए थे जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं कर रहा था ताकि आप उस चीज को समझ पाओ? एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग? You just start to journal. You must have a notebook or a diary or anything that is named IPMAT journal. अगर आपके पास एक IPMAT journal है तो आप exactly ये चीज समझ पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। क्या आपकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई, टाइम मैनेजमेंट में कमी रह गई, या आप इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, एंग्शियस हैं। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो मेरे कुछ भी सोल्यूशन बताने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। That's what toppers do. Toppers understand their own psychology because they know they can't afford a minus marking just because they're stressed. Now this pointer 2 is going to change your preparation for always. The pointer 2 is so important that I am personally asking you to keep a notebook and a pen ready, because you will have to write some things and they are going to help you a lot. And it is confidence engineering framework. This confidence engineering framework will help you regain your confidence that you've lost due to taking full length mocks or sectionals which you are not performing well in. तो अब हम बात करते हैं कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस वापस कैसे जगाना है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू नीड डेली स्मॉल विंस। आपको रोज रोज छोटा अपने ऐसे टास्क करने हैं जिसमें आपको एक विनर जैसा फील हो। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी जस्ट अ सेक्शनल, इट कुड बी जस्ट 5 questions, it could be a reading comprehension passage that you tried, it could be anything, but there has to be something every day. It could be a very difficult quant question that you want to do. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वांट का क्वेश्चन उठाया जो बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन आपने उसको एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर लिया। इट इज अ ग्रेट विन फॉर यू, इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू। इफ
आप ये सोचते हो कि यार मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो गलत किया था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्यों वो क्वेश्चन गलत होता है हर बार, तो आपने अगर उसको समझ लिया तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट विन फॉर यू। लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि डेली आई नीड वन वे विन। तो उस विन के लिए आपको एवरी डे कुछ ना कुछ ढूंढना है। हो सकता है कि वो एक वीए का क्वेश्चन हो सकता है वो एक आरसी का पैसेज हो जिसपे 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इट कैन बी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू ट्रैक योर ट्रेजेक्टरी, नॉट इंडिविजुअल स्कोर्स। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देयर वाज अ गाय नेम्ड आयुष, एंड आयुष जो थे वो एक रूरल एरिया से बिलोंग करते थे इन इंडिया, इन यूपी। एंड उसकी वजह से उनकी जो इंग्लिश थी वो बेसिक अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मैं कहूंगी, और बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी। ना वो बहुत अच्छे से बोलना जानते थे और ना उनको समझ में आती थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके रीड करना उसको समझ लिया था। एंड आयुष के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फेस इंग्लिश। मैथ्स तो उनसे बन जाते थे क्योंकि वो मैथ्स में बहुत अच्छा कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस आईपी मैट को चुना था। लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि अगर मैं इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं तो शायद मैं इंग्लिश बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो उन्होंने चालू किया इंग्लिश को बहुत बहुत सीरियसली लेना। एवरीडे वो कुछ रीड करते थे, सेकेंडली एवरीडे वो कुछ प्रैक्टिस करते थे। ये दो चीजों से उनकी पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई एंड उनने उसका रिकॉर्ड रखा इन द आईपी मैट जर्नल। लिटरली दिस इज नॉट माई आइडिया, दिस इज अ स्टूडेंट्स आइडिया। एंड उन्होंने मुझे बताया था कि एक आईपी मैट जर्नल होती है तो आपको पता चलता रहता है कि आपने एक मार्क से दूसरे मार्क में जो जंप किया है, या एक परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी से जब दूसरे परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी पे जंप किया है, वो कैसे किया है, वो क्यों आया है, ऐसा क्या मेंटल क्लैरिटी मिली, वॉज इट अ नॉलेज क्लैरिटी, वॉज इट अ टाइम मैनेजमेंट क्लैरिटी, वॉज इट एन इमोशनल क्लैरिटी, व्हाट वॉज इट। एंड उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। सी, आई नो तुमको ऐसा लग रहा होगा इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो तुमने मुझे बता दी कि मुझको नॉलेज का गैप हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और मैं एक जर्नल भी बना सकता हूँ। लेकिन इस जर्नल के बेसिस पे जब मुझे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगा। डोंट वरी ब्रो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा सोल्यूशन क्या हो सकता है। मैं आज इस वीडियो में तुम्हें सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ। देखो, 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉलेज गैप, टाइम मैनेजमेंट गैप एंड थर्ड इज इमोशनल गैप। अगर तुम्हें नॉलेज गैप फील होता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है जो तुम्हारा कभी क्लियर नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो तुम्हें लिंक इन डिस्क्रिप्शन से डीएसबी के लिंक पे जाना चाहिए एंड उस बैच को एक बार चेकआउट करना चाहिए। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, believe me, it's one of the best. It is behind the topper AIR 1 of IPMAT 2025 plus AIR 7 of IPMAT 2025 and 33 more students who have went to IIM Indore this year itself. And other than that, if you are facing a time management gap, you only need to practice. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए चुटकियों का गेम हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, डाइवर्स क्वेश्चंस होने चाहिए, डिफिकल्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस होने चाहिए एंड बहुत अच्छे से आर्टिकुलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे ही आपको वो मिलेगा आपके लिए सब कुछ इजियर हो जाएगा। What you can do is go to the link in description. There you will find a free hash IP mat mock. On the basis of that, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप बाकी के भी hash IP mat mocks को चेक कर सकते हो। अब इस मोमेंट पे मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूं एंड मैं तुम्हें एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से यहाँ रेस्क्यू करने आई हूं। अगर तुम कभी भी, चाहे मॉक लिखते हुए चाहे एग्जाम देते हुए, कभी भी फंस जाते हो किसी क्वेश्चन में या एंजाइटी फील करते हो, पैनिक फील करते हो, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो देयर वाज अ गाय जिसका नाम था अक्षय, एंड अक्षय जो था वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो पैनिक हो गया। क्यों पैनिक हो गया? क्योंकि वो एक क्वेश्चन में फंस गया। इस क्वेश्चन में जब वो फंस गया तब उसको ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन तो उस टॉपिक का है जो उसका बेस्ट है, मतलब ज्योमेट्री का। एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चन में फंसने के बाद उसको ऐसा लगा यार यहाँ तो सब खत्म हो गया, जिसमें मैं बेस्ट हूं, अगर वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो अब मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन आगे जो अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, वो इजियर थे एंड अक्षय उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकता था। लेकिन क्योंकि वो एंग्शियस हो गया, लेकिन क्योंकि वो पैनिक में आ गया, इसलिए अक्षय उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाया। ये मोस्ट स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है, चाहे वो मॉक में हो चाहे वो मेन एग्जाम में हो।
टू बैड फॉर अक्षय कि उसके साथ ये चीज मेन एग्जाम में हुई, जिसकी वजह से वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जब भी आप किसी भी चीज में फंसते हो और आपको ऐसा लगता है एंजाइटी इज गोइंग टू किक इन, आप सिर्फ ब्रीथ करिए। जी हाँ, सिर्फ सांस लेनी है। कैसे सांस लेनी है वो बता देती हूँ। यू हैव टू ब्रीथ इन फॉर 4 seconds, hold your breath for 6 seconds, and then breathe out for 6 seconds, and that's all. That is going to help you. You do it right now. Pause this video and do it right now, and you'll understand कि कितना ज्यादा रिलीफ मिलता है, कितना ज्यादा हेड क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप दो चीजें कभी भी सही से कंसिस्टेंटली लेते ही नहीं हो, अपनी बॉडी को प्रोवाइड ही नहीं करते हो। पहला है ऑक्सीजन एंड दूसरा है पानी। तो जाके पानी पियो, इस चैनल पे सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, bye. Love you.